For class, open your English book, page number 76. Fifth chapter is The Silver Knitting Needles, चांदी की बुनने वाली सलाइयाँ. सना wanted to be just like her grandmother when she grew up. सना बड़ी होकर अपनी दादी अम्मा जैसी बनना चाहती थी. दादी was special because her fingers worked like magic. दादी अम्मा की खास बात ये थी कि उनकी उंगलियां जादू की तरह काम करती थी. Within minutes, मिनटों में she could use her silver knitting needles to knit anything सना asked. सना जो कहती थी वो मिनटों में अपनी चांदी की सलाइयाँ इस्तेमाल करके बुन सकती थी. इन द विंटर, सर्दियों में सना वुड वेयर द स्वेटर, सॉक्स एंड स्कार्फ्स नेक्ड बाय दादी टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड. सर्दियों के मौसम में सना खुद को सर्दी से बचाने के लिए दादी के बने हुए स्वेटर, जराबे और छोटे दुपट्टे पहनती थी. शी लव्ड टू सी दादीज हैंड मूव्ड लाइक लाइटनिंग एज शी क्रिएटेड ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ क्लॉथिंग फ्रॉम सिंपल थ्रेड. सना को अपनी दादी अम्मी के हाथों को बिजली की तरह काम करते हुए देखना बहुत पसंद था, क्योंकि वो सादा धागे इस्तेमाल करके कपड़े बना लेती थी. फॉर क्लास, आपने चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग एज इट इज़ करनी है. जिन वर्ड्स के मीनिंग मैंने राइट किए हैं वो आपने अपनी बुक पे लिखने हैं. जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है उनके मीनिंग सर्च करके बुक पे लिखिएगा. फॉर क्लास, लुक एट दिस पेज. हियर आर सम अंडरलाइन वर्ड्स. सर्च देयर मीनिंग फ्रॉम डिक्शनरी एंड राइट ऑन बुक. Lesson number 5. Answer these questions. Question number 1. How did Sana protect herself from the cold in winter? Answer is Sana protected herself from the cold in winter by wearing sweaters, socks and scarves. Question number 2. Where did Dadi keep her silver knitting needles? Answer is she kept her silver knitting needles on the top of shelf. Question number 3. Why did Dadi scold Ali? Answer, because Sana had told her that Ali took out the knitting needles to play. Question number 4 is, how did Dadi finally understand the truth behind what had happened to her needles? Answer is, when the bus driver returned the silver knitting needles, Dadi finally understood what had really happened. Question number 5. What lesson did Sana learn from the whole incident? Answer is, Sana learned the importance of truthfulness. Question number 6. Why did Dadi forgive Sana? Would you have done the same? Answer is, yes, Dadi forgave Sana by saying needles could be replaced, but she had only one granddaughter. Yes, I do the same. For class, lesson number 5 के इस क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह याद करके रफ कॉपी भी इनकी प्रैक्टिस करनी है. Next activity is, from these stories you have learned the difference between telling truth and a lie. See if you have understood the story by making a tick mark in front of a true statement and a cross mark in front of an untrue statement. Dadi's knitting needles were golden in color. Cross. The knitting needles had been a gift to Dadi from Sana. Cross. Dadi placed her knitting needles on the top of shelf. Tick. Sana took the needles to school for Grandparents' Day. Tick. Sana's friends had stolen the knitting needles. Cross. Solve this activity on your book. Let's learn some new words. Locate the following words in the lesson and match them to their definitions. ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हम उनकी डेफिनेशंस के साथ मैच करेंगे. Apologize, माफ़ी मांगना. To say sorry. Knitting, बुनना. The process by which wool is used to create clothes. Possession, मलकियत. A belonging. Disappointed, मायूस. Sadness, when someone does not meet your expectations. Accuse, इल्ज़ाम लगाना. To blame someone for doing something wrong. Confess, गलती तस्लीम करना. To admit that someone has done something wrong. Solve this activity on your book and practice it on rough copy. Next topic is and, but, or. Next topic is and, or, and, but. The words and, or, and, but are called conjunctions or joining words because they help to join two parts of a sentence. एंड, बट और को कंजक्शंस कहा जाता है या जॉइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस के दो पार्ट्स को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. द वर्ड एंड इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू ऐड इन्फॉर्मेशन टू अ सेंटेंस. एंड का वर्ड हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम सेंटेंस में मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन का इजाफा करते हैं. फॉर एग्जांपल, सना वॉर द स्वेटर, सॉक्स एंड स्कार्फ्स दादी मेड फॉर हर. यहाँ पे स्वेटर सॉक्स के साथ हमने स्कार्फ्स का इजाफा किया तो हमने एंड का वर्ड इस्तेमाल किया. द वर्ड और इज़ यूज टू शो डैट वी हैव अ चॉइस. और का वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे दो चीज़ों के दरमियान हमारे पास चॉइस होती है कि हमें दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो चूज़ करनी है. फॉर एग्जाम्पल, सना हैड द ऑप्शन ऑफ सेइंग अ पेनफुल ट्रूथ और टेलिंग एन ईजियर लाई. थर्ड इज़ द वर्ड बट इज़ यूज टू शो इन्फॉर्मेशन डैट इज़ डिफरेंट और अनएक्सपेक्टेड. और बट का वर्ड हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे
ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि डिफरेंट होती है या अनएक्सपेक्टेड होती है, हमारी तवक्कात के बरक्स होती है। फॉर एग्जांपल, सना न्यू टेलिंग अ लाई वाज रॉन्ग बट शी हैड स्टिल डन इट। सना ये जानती थी कि झूठ बोलना जो है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसने वो काम किया। अंडरलाइन दिस लाइन्स एंड लर्न इट। Filling the blanks with correct joining words and, or, and but. First is, would you like to eat food or play cricket? Pakistan and India are neighboring countries. She wants to bake a cake but she does not have any flour. We have a holiday today but I am still being forced to work. My cat is very friendly but has brown strips on his fur. Do you want to chocolate or strawberry ice cream? I have a blue dress and a blue hat. Have He gave me a red pen but I needed a green one. Solve this activity on your book and practice it. Action words. Words that show what a person, animal or thing can do are called action words. ऐसे अल्फाज जो ये जाहिर करें कि एक शख्स, जानवर या कोई भी चीज़ कोई काम जो है वो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी डे जिशान प्लेस अ सॉन्ग ऑन हिज फ्लूट फॉर हिज मदर। शी यू साउंड ब्यूटिफुल शी सेड। हेयर बोथ प्लेस एंड साउंड आर वर्ब्स। यहाँ पे प्लेस और साउंड जो है वो वर्ब है। हाउएवर, ताहम प्लेस इज ओनली एन एक्शन वर्ड। लेकिन जो प्ले है वो सिर्फ एक्शन वर्ब है, यानी कि वो काम जो है वो करता है। बिकॉज साउंडिंग अ सर्टेन वे इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डूइंग समथिंग। जहाँ पे प्ले जो है वो काम करना है, इट्स मीन प्ले हो, यहाँ पे हमारे पास एक्शन वर्ब हुआ। एन एक्शन वर्ड डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी फिजिकल, इट कैन बी मेंटल as long as it is something that can be done. एक्शन वर्ड्स ये ज़रूरी नहीं है कि एक्शन वर्ब जो हों वो हमेशा फिजिकल हों, ये मेंटल भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिशान वॉन्ट्स टू इम्प्रेस हिज क्लास, ही थिंक्स हिज स्पीच वुड गो बेटर इफ़ ही प्लेड द फ्लूट। हेयर बोथ वॉन्ट्स एंड थिंग्स आर वर्ड्स। यहाँ पे वॉन्ट्स और थिंग्स जो हैं वो दोनों वर्ब्स हैं, लेकिन एक्शन वर्ब्स, लेकिन फिजिकल एक्शन वर्ब्स नहीं है। मतलब कि वांट, चाहना और थिंक, सोचना हमें नज़र नहीं आते, लेकिन मेंटली ये जो काम है वो होते हैं। डैट कैन बी डन, विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स। फॉर क्लास इन लाइन को अंडरलाइन करें और इन्हें अच्छी तरह याद करें। हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन वर्ड्स। कुक, रीड, लाफ, स्लीप, बार्क। ये तमाम अल्फाज